A winner is a dreamer who never gave up. With this beautiful thought of Nelson Mandela, let me start today's video. मेरा नाम मोहम्मद आदिल है एंड आई एम अ टीचर इन केंद्र विद्यालय। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने डेमो लेसन में पैटर्न के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। Because in interview, this is very general questions that they can ask you, that how will you teach pattern in class 2, class 1, class, or it can be any class in primary section. Okay, so I will suggest some activities that you can use in your demo lesson for introducing the pattern. So without further ado, shall we start? So you when you enter inside the classroom, you will not say that okay बच्चों open your notebook and write something on board, you have written something on board and tell them okay do it, copy करो और इस पर लाइक आपने अपना नंबर लिख दिया कुछ 2 4 6 what comes next. This way of teaching is not that much effective. If you are giving a demo lesson interview, then at that time you should be little creative in front of the interview board panel. So my activity is what you can do when you enter inside. You will tell them, tell the students that okay बच्चों आज हम एक खेल खेलेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू प्ले वन गेम. जैसी गेम का नाम बच्चे सुनते हैं ना, वो उनका एकदम सारे सेंस ऑर्गन्स एकदम अच्छे से काम करने लगते हैं. दे विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, ओके दे विल स्टार्ट शाउटिंग एंड दे विल फॉलो वट एवर यू विल से. सो गेम हम कैसे करेंगे? विल स्टार्ट विथ you will tell them okay whatever I will say you have to copy, or whatever I will do you have to copy me. So children will copy you. You will say okay clap. So all children will clap. Clap snap, clap snap, clap snap. All right, so others will copy you. Then you can further add like clap snap bye, clap snap bye, clap snap bye. ओके, सो इसमें आप देखेंगे कि एक पैटर्न बन रहा है. आप समझे? पहले हमने स्टार्ट किया क्लैप स्नैप, क्लैप स्नैप, क्लैप स्नैप. जैसे आप क्लैप करेंगे बच्चे नेक्स्ट स्नैप करेंगे. क्लैप स्नैप, देन वी डिड बाय, क्लैप स्नैप बाय. तो एक पैटर्न है. तो इस तरीके से आप उनको एक इंटरव्यू बोर्ड को एक इम्प्रेसिव वे है कि आप ऐसे पैटर्न की शुरुआत कर सकते हैं. इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो धीरे धीरे हम उन पर आएंगे. थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकते हैं. बट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द क्लिक, स्नैप, शूट, थम्स अप, बाय. Again, shall we start again? Okay. Click, snap, shoot, thumbs up, buy. अब जब आप ये एक्टिविटी बच्चों को करवाएंगे और बच्चे क्लास में आपको कॉपी करेंगे, then you can write these words on board and then it will be look like a pattern. Okay, these things are coming in pattern, like first we clap, then snap, then we are doing thumbs up. तो एक पैटर्न सा बच्चों को इस तरीके से आपको बोर्ड पर लिखना है. दूसरा, आपको इसी में आपको क्या करना है कि क्लिक, तो आपको बच्चों से पूछना है व्हेन वी क्लिक ऑन द माउस बटन, तो हाउ मेनी फिंगर्स वी आर यूजिंग. चिल्ड्रन विल से ओके वी आर यूजिंग 1 finger. ओके, देन स्नैप, व्हेन वी आर स्नैपिंग हाउ मेनी फिंगर्स आर एक्टिव, सो ओनली 2. Thumb and this, so you can they will say okay 1. When you start click, then 1 finger, snap 2 finger, then you shoot. So when we shoot 1 2, thumb is also included, 1 2 3, shoot 1 2 3, so 3 fingers. Then next what I said thumbs up. So in thumbs up how many fingers are closed? So they will say okay 4 fingers are the close grip. Then bye bye. So our entire hand, that means 5 fingers, including I will consider thumb as a finger. So they will say okay 5. So it is also a pattern. We'll start with 1, 2, 3 and 4 and 5.
ओके। देन दूसरा एक मेथड होता है पैटर्न को इंट्रोड्यूस करने का, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे कि बच्चों को बताएंगे कि आपका एक यूनिफॉर्म है, उसका भी एक पैटर्न है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो शूज़, फिर सॉक्स, फिर आपका ट्राउज़र, बेल्ट, शर्ट एंड योर आई कार्ड। सो isn't it a pattern? So they will say yes, it is a pattern. Then you can ask them, okay, now do reverse that pattern, do it from top to bottom. We started from bottom to top, now go for top to bottom. So they will say, okay, we'll start. Then they will say I-card, then your shirt, then your belt, then trouser, then socks, then shoes. So ये भी एक पैटर्न है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो और उनको लाइन में खड़ा कर सकते हो पैटर्न सिखाने के लिए। और एक बच्चे का बेल्ट रिमूव कर देंगे आप, तो आप बताएंगे क्या आप मिसिंग है, विच वन इज़ मिसिंग। तो मिसिंग पैटर्न का फिर बोर्ड पर आप लिख दोगे शूज़, बेल्ट, वन इज़ मिसिंग, then shirt, then what is missing, then they will say, okay, this is now belt is missing. And then you can give one moral teaching also in that कि we should always wear a proper uniform. तो इसमें एक moral भी include हो जाता है। ओके बाकी आप जैसे सिंपल बच्चों को ग्रुप में खड़ा कर सकते हैं। फर्स्ट पहले ग्रुप में एक बच्चा है, दूसरे ग्रुप में 2 हैं, तीसरे ग्रुप में 3 बच्चे हैं। तो इस तरीके से भी आप एक पैटर्न बच्चों को ही यूज़ करके आप पैटर्न बना सकते हैं। फिर दूसरा आप कुछ कटिंग शेप्स की कटिंग ले जाकर कि सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, तो वो शेप्स आप बोर्ड पर पेस्ट कर सकते हैं सभी। लेकिन डेमो लेसन में शायद आपके पास टीएलएम वगैरह उतना अवेलेबल नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको सिर्फ कुछ एक्टिविटी उनको एक्सप्लेन करनी होगी। आई थिंक इतना आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें आप जो एक्टिविटी आप करवा रहे हैं वो टोटली दूसरे बच्चों से डिफरेंट होगी। क्योंकि कोई बच्चा बोर्ड पर कुछ लिख देता है तो वो एक अच्छा नहीं है। बोर्ड पर भी लिखना है, लेकिन फर्स्ट आपको बच्चों को रेडी करना है कुछ चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए, नई चीज़ लर्न करने के लिए। जैसे आपने खेल का नाम लिया वो बच्चे अलर्ट हो जाते हैं। फिर आप जो आप उनसे बोलोगे वो सब आपको करके दिखाएंगे और फॉलो भी करेंगे आपको। और आपने क्या है, सभी को इन्वॉल्व भी किया है उसमें, तो सभी का इंक्लूज़न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि बोर्ड पर आपने कुछ लिख दिया और बच्चे उसको कॉपी करेंगे, उसमें सभी बच्चे इंक्लूडेड नहीं होते। तो इसमें जैसे कि आपने पेडागोजी में पढ़ा होगा कि 4 टाइप्स ऑफ लर्नर होता है। तो अभी आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या आप उन्हीं 4 टाइप्स ऑफ लर्नर को क्या इन्वॉल्व करवा पा रहे हैं? तो वही आपकी पेडागोजी का टेस्ट है, प्रैक्टिकल पेडागोजी का जिसे मैं कहता हूँ, ना कि आप जो सीटेट और केवीएस में लिख कर आए हैं। ओके, तो आई होप आपको मेरी ये सजेस्टेड एक्टिविटीज़ अच्छी लगी होंगी। इसी तरह से आपको किसी और कुछ और एक्टिविटीज़ पैटर्न सिखाने के लिए बच्चों का यूज़ कर सकते हैं कि 1 बॉय 1 गर्ल, फिर 1 बॉय 1 गर्ल, इस तरीके से आप उसको एक पैटर्न में लाइन में खड़ा कर सकते हैं। ओके, जैसे 1 बॉय 2 गर्ल, देन नेक्स्ट ग्रुप में 1 बाय 3 गर्ल, देन नेक्स्ट ग्रुप में 1 बॉय 4 गर्ल, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट? सो दे विल आस्क, ओके 1 बॉय 5 गर्ल, सो दे विल डेफिनेटली टेल द आंसर। ओके, सो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको बच्चों को ग्रुप में ही आपको एक्टिविटी कराओगे तो बहुत और भी अच्छा, आपको नए नए आइडियाज़ और ज़्यादा आएंगे। और बच्चों को आपको इंक्लूड करना है, तो इसमें क्या है, कुछ भी एक्टिविटी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें सभी का इंक्लूज़न हो रहा है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक और एक्टिविटी आप यूज़ कर सकते हैं पैटर्न सिखाने के लिए कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे अपना ज्योमेट्री बॉक्स लाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल, शार्पनर, रबड़ ये रहता है, तो आपको उस ऑर्डर में सबको बोल दीजिए ओपन योर ज्योमेट्री बॉक्स। ओके, सो कीप योर पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केल, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केल, सो ऑल विल कीप ऑल दिस थिंग्स ऑन देयर टेबल। सो वो एक पैटर्न बन जाएगा उनके अपने बेंच के सामने जब वो रखेंगे, तो पैटर्न विल बी लाइक पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केल, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केल। तो आपने उन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज़ करके कोई आपको कुछ टीचिंग एड बनाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस विल बी ऑल्सो वेरी गुड एक्टिविटी फॉर एक्सप्लेनिंग द पैटर्न। और दूसरा एक्टिविटी आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मैच बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, बट आपको यू हैव टू बी वेरी अलर्ट दैट
कि बच्चे वो माचिस की तिल्ली से ना खेलें, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। हाँ, मैच बॉक्स का आप खाली मैच बॉक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। बॉटल के कैप्स का आप यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम सिचुएशन में। हालांकि डेमो में आप ये सब लेके नहीं जाएंगे, बट ये एक आइडिया आप उनको दे सकते हैं कि हाँ हम ऐसे ऐसे पढ़ा सकते हैं, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा इसकी एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के इसके पास कई तरीके हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ आपको लगानी होती है एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 15 दिन आप पैटर्न पढ़ा रहे हैं, तो आपका हर वो 15 दिन जो है ना आप जो पढ़ा रहे हैं, तो 15 नए मेथड आपके पास होने चाहिए पढ़ाने के लिए। तो वही आपकी वही आपका टैलेंट है। केवीएस ऐसे ही टीचर्स को अच्छे मार्क्स देता है और अच्छे। दूसरा, आप टूथ स्टिक से भी पैटर्न बनवा सकते हैं, मैच स्टिक से पैटर्न बनवा सकते हैं। ओके, उनकी पेंसिल से पैटर्न बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बनाए जा सकती हैं, उनको एक ऑब्जेक्ट को एक ऑर्डर में रख कर भी आप पैटर्न। तो बहुत सारी आपको अभी आइडिया शायद आ गए होंगे। दीज आर माई जस्ट सम सजेशंस रिगार्डिंग हाउ यू कैन यू टीच द पैटर्न. Hope you are doing well and your preparation for your interview is going well, and I hope you will use this activity. These are not the activity, these are just you can say just some suggestions you can modify according to your situation. Thank you, have a nice day.